हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नो सिलेबस, जहां हम कहानियां सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की हमारी कहानी है एनसीईआरटी क्लास 3 की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 8, जिसका नाम है थैंक गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes." The farmer thought about it and said, "Since it's a long journey to the palace, I shall take the grapes as the watermelons are too heavy." So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. The farmer reached the palace. He told the palace guard that he had brought a gift for the king. The palace guard then took him to the royal garden. The farmer saw the king playing with the princess, so he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. The king saw the farmer. The king was still in a playful mood. He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." The king was surprised. He threw a grape again. The farmer again said, "Thank God, I am blessed." The king asked the farmer, "Why are you thanking God when I'm throwing grapes at you?" The wise farmer replied with a smile, "Oh, mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I choose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great." तो हमने कहानी सुन तो ली, अब बारी है इसे पढ़ने और समझने की। यह एक बहुत ही मजेदार कहानी है एक किसान की। किसान मतलब क्या? फार्मर। देखते हैं क्या होता है इस किसान के साथ। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. So he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. तो एक बार की बात है, एक किसान था जो फ्रूट्स बहुत पसंद करता था। उसने डिसाइड किया वो अपनी जमीन पर मतलब अपने फार्म में फ्रूट्स उगाएगा। उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे सारे पेड़ अच्छे से बड़े हो गए। उसने अपने फार्म के एक छोटे से कोने में अंगूर यानी ग्रेप्स और तरबूज यानी वाटरमेलन्स भी उगाए। तो अब सीखे हैं हमने दो नए वर्ड्स, ग्रेप्स अंगूर और वाटरमेलन तरबूज। और वैरायटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes." The farmer thought about it and said, "Since it's a long journey to the palace, I shall take the grapes
as the watermelons are too heavy. So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. तो जब सारे फ्रूट्स पक गए तो किसान ने सोचा कि वह राजा को मतलब कि किंग को सबसे अच्छा फ्रूट गिफ्ट करेगा। उसकी पत्नी मतलब कि वाइफ ने कहा, इस साल हमारे फार्म के सबसे अच्छे फ्रूट्स हैं तरबूज और अंगूर। तो किसान ने सोचा राजा का महल तो बहुत दूर है और तरबूज बहुत भारी होता है यानी हैवी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अंगूर लेकर जाएगा। तो उसने एक टोकरी में अंगूर भरे और चल पड़ा राजा के महल की तरफ। तो हमने क्या नए वर्ड सीखे हैं? पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। जर्नी, जर्नी मतलब कि सफर, दूर तक जाना। और हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी। एक सेकंड रुको, क्या तुम्हें पता है कि तरबूज भारी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। यू आर वेरी क्लेवर, राइट। तो आगे चलते हैं स्टोरी में। द फार्मर रीच्ड द पैलेस। He told the palace guard that he had brought a gift for the king. The palace guard then took him to the royal garden. The farmer saw the king playing with the princess, so he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. तो किसान महल पहुंचा। उसने वहां के पैलेस गार्ड को बताया, यानी जो दरवाजे पर खड़ा था, कि वो राजा के लिए गिफ्ट लाया है। गार्ड का मतलब समझते हो? पहरी या द्वारपाल, जो किसी जगह की रक्षा करता है। अब गार्ड उसे रॉयल गार्डन में ले गया, यानी राजा के शाही बागान में, रॉयल गार्डन में। वहां राजा प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। किसान ने चुपके से अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी और बैठ गया। तो क्या क्या हमने नए वर्ड सीखे हैं? गार्ड, गार्ड का मतलब होता है द्वारपाल या सिपाही। रॉयल, रॉयल शब्द से हम समझते हैं शाही, राजा से जुड़ा हुआ। और क्वाइटली मतलब चुपचाप, बिना आवाज किए। तो अब आगे कहानी पढ़ते हैं। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. The guard told the king that the grapes were a gift from the farmer. The king was still in a playful mood. He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. जब राजा थक के रेस्ट करने के लिए बैठा, गार्ड ने अंगूर की बास्केट राजा के पास जाकर रख दी। गार्ड ने राजा को बताया कि ये अंगूर किसान लाया है एज अ गिफ्ट। राजा अभी भी प्लेफुल यानी मजे के मूड में था। तो उसने क्या किया? उसने बास्केट में से ग्रेप्स का एक गुच्छा उठाया, फिर राजा ने एक अंगूर खुद खाया और फिर मजाक में एक अंगूर किसान पर फेंक दिया। पॉप्ड का मतलब है जल्दी से मुंह में डाल लिया। अब देखते हैं किसान ने क्या कहा जब अंगूर उसको लगा। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." The king was surprised. He threw a grape again. The farmer again said, "Thank God, I am blessed." तो जैसे ही अंगूर किसान के माथे यानी फोरहेड पर लगा, किसान ने कहा, "Thank God." वाओ, सोचो जरा, राजा ने किसान को अंगूर से मारा और किसान बोल रहा है थैंक गॉड। राजा को भी बहुत अजीब लगा यानी सरप्राइजिंग। उसने फिर एक अंगूर फेंका और फिर से किसान बोला थैंक गॉड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। ब्लेस्ड का मतलब धन्य हूं, मुझ पर भगवान की कृपा है। बच्चों, आपको क्या लगता है किसान थैंक गॉड क्यों बोल रहा था? सोचिए और आगे सुनते हैं। The king asked the farmer, "Why are you thanking God when I am throwing grapes at you?" The wise farmer replied with a smile,
O mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I choose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. राजा ने पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं, तुम थैंक गॉड क्यों बोल रहे हो? और किसान ने मुस्कुराते हुए बहुत ही समझदारी वाली बात कही। किसान ने कहा, राजा साहब, मेरे पास अंगूर और तरबूज दोनों थे। मैंने आपको गिफ्ट करने के लिए अंगूर लाया। सोचिए, अगर मैं तरबूज ले आता तो क्या होता? तो तरबूज लाया होता, है ना? तो किसान तो नहीं बचता। इसलिए किसान बोल रहा था, थैंक गॉड, मैंने अंगूर लिए, तरबूज नहीं। तो अब समझते हैं ये कहानी हमें क्या सिखा रही है। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो कहानी आपने सुन ली, ठीक है? अब आपने समझना है इसका मॉरल या ये हमें क्या सीख देती है। हर मुश्किल में भी अच्छी बात ढूंढनी चाहिए। किसान को दर्द हुआ, पर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ अंगूर लाया था। ये सोचने का तरीका होता है, मतलब कि थैंकफुल रहना। तो बच्चों, अब कुछ सवाल, ठीक है? ये सवाल आपके लिए है। आंसर्स सोच के आपने मुझे बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, द फार्मर ग्रू फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। आपने बताना है व्हाट वर द 2 स्पेशल फ्रूट्स ही ग्रू। वो कौन से 2 स्पेशल फ्रूट्स थे जो फार्मर ने उगाए? यस, करेक्ट आंसर है ग्रेप्स एंड watermelons. Very good. Now let's move on to the second question. Second question है, why did the farmer choose grapes instead of watermelons? उसने grapes ले जाना क्यों डिसाइड किया? क्या रीजन है इसका? Because watermelons were too heavy for the long journey. उसे बहुत दूर तक जाना था और अगर वो वाटरमेलन्स लेके जाता तो बहुत भार हो जाता। सो वाटरमेलन्स वर टू हैवी। और अगर आपका भी यही आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट। क्लैपिंग फॉर यू। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली विद द ग्रेप्स? राजा ने क्या किया ग्रेप्स के साथ? तो जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, ही थ्रू अ ग्रेप एट द फार्मर। क्या करा था राजा ने? उसने फेंका था ग्रेप। तो आंसर होगा ही थ्रू अ ग्रेप एट द फार्मर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डिड द फार्मर से व्हेन द ग्रेप हिट हिम? क्या कहा था फार्मर ने? यस, द आंसर इज थैंक गॉड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Why did the farmer say thank God? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? फार्मर ने ऐसा क्यों कहा? इसका आंसर क्या होगा? Because he was glad. वो खुश था that he had brought grapes and not watermelons. क्योंकि अगर वो watermelon लेके आता तो क्या होता? The watermelon would have hurt him. उसको watermelon लग सकता था। तो that is the reason he was saying थैंक गॉड। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा थैंक गॉड, एक बहुत ही प्यारी और फनी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और बच्चों, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग वर्कशीट बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, तो डाउनलोड द नो सिलेबस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर or iOS today. The link is given in the description. मिलते हैं अगले चैप्टर में. Till then, bye bye all of you.